your last day's assignments, you can ask. एंड आज हम शुरू करेंगे टपल्स, डिक्शनरीज और सेट्स पढ़ेंगे. ऑलराइट. Just remind me one thing. I'm so sorry. I'm not able to clearly remember. Have we done loops? Loops हमने पढ़ लिए थे ना?
Hi everyone, good afternoon. Let's begin the session. So कल हमने पढ़ा था Python list, right? आज हम शुरू करते हैं tuples in Python. लिस्ट में आपको समझने में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम थी? किसी को कुछ कोई चीज लिस्ट में ना समझ में आई हो तो? Anything that you might not have understood in lists? Dear all, it is the same link. The link of the session is already provided in the group description. Why every day still you guys struggle for the link? I don't understand. Group के description में आपकी link है already. Every class I have to tell you the same thing कि भाई list link description पे है आपकी already. फिर कहाँ problem है? Also, everyone start turning on your cameras today. Turn on your cameras. Everyone turn on your cameras. Students, start turning on your cameras. Everyone, can you please turn on your camera? We'll not study otherwise. कोई बात नहीं. I'll not take it forward. Please turn on your cameras. Turn on everyone. Turn it on, please. Mehak, I wanted to ask to you whether have you registered yourself before? Yes, ma'am, I have. Your email is I'm not able to find basically. Everyone, please turn on your camera.
Mranal, I suppose you're Mranal Kulkarni, right? In this batch, is there any Mranal Kulkarni? Okay, no worries. All right, what about others? Please turn on your camera. From 70 people, only 7 were able to turn it on. Please start turning on your cameras. Mranal Kulkarni, can you please share your email ID? Yes, Have you ma'am. registered on the LMS before? Yes, ma'am. Please share your email ID if you have registered Ma'am, on the LMS. ma'am, in chat box I have to share. Only Mranal I'm asking, okay? Ma'am, in chat box I have to share. All right. You can turn off your cameras because no one is responding over here in this batch. I hope all the faculty members of the particular college, you are taking notes of it, that the students are not responsive at all. All right, so I'll begin with the lecture now. So we are starting with tuples, okay? And tuples basically they are similar to a list, but there is difference in in tuple is that they store multiple data, but that should be of a similar type. Okay, you are storing multiple data but of similar type, whereas in list you have different types, right? How can you create a tuple in Python? So to create a tuple, we use parenthesis for that, and we give similar type of data. अगर नंबर्स हैं तो तुम नंबर्स ही दोगे, अगर स्ट्रिंग्स लगा रहे हो तो स्ट्रिंग्स दो, बूलियन वैल्यूज है तो बूलियन दो, ठीक है? नॉट, इट्स नॉट काइंड लाइक हेट्रोजेनस. Okay, then you move on to printing. So printing of the same is in the similar manner as you've seen for the list. मतलब more or less जो काम है ना वो एक ही जैसे से करते हो, एक्सेस भी हम उसी तरीके से करेंगे, इंडेक्सिंग भी हम उसी तरीके से यूज करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे डिफरेंस है वो ये है कि ये सेम टाइप का होता है, ठीक है? यहाँ पे जो डेटा आपका जाएगा वो सेम टाइप का है. सो ईच आइटम इन अ टपल इज एसोसिएटेड विद अ नंबर. यहाँ पे ये जो है वो इम्यूटेबल होता है. यू विल नॉट बी एबल टू मेक चेंजेस वंस यू हैव मेड अ टपल.
ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू रिमेम्बर कि भाई जो टपल है वो इम्यूटेबल होता है। ठीक, अगर आपको हर किसी आइटम को एक्सेस कराना है, लेट्स से यू वांट टू एक्सेस जस्ट दी टपल आइटम्स, तो हम उसके लिए वही अपना सेम इंडेक्सिंग यूज करते हैं। ठीक, जैसे मुझे सेकंड पे मान लीजिए हम कोई चेंज कराना चाहते हैं, सेकंड इंडेक्स पे, जैसे मैं टप 10। तो देखिए यहाँ पे ये आपको ऑलरेडी एक एरर दे रहा है, लेकिन फिर भी इसको अगर आप रन करके देखोगे ना, सो ये आपको एक एरर, ट्रेस बैक एरर जो दे रहा है, दैट इज अ टाइप एरर। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब एक बार जो आपने टपल बना दिया, आप उसमें चेंज नहीं कर पाओगे, दैट इज द थिंग। मतलब अगर मैंने एक बार जब टपल डेफिनेशन के टाइम पे सेकेंड इंडेक्स पे 3 दिया था, मैं नेक्स्ट टाइम कहीं और उसको प्रोग्राम में 10, 20, 30 कुछ और नहीं बना सकती। इट्स इम्यूटेबल, दैट इज इट व्हाट इज सेइंग। ठीक है, अभी आप इसे एक्सेस कराना चाहते हो तो हम एक्सेस कराते हैं विद द सेम दी एरे की तरह, उसका स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स पास करा के, ऐसे। ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो यू विल गेट द आंसर। जैसे भाई फोर्थ, थर्ड इंडेक्स पे हमारे पास 4 है, तो इट्स रिटर्निंग 4। सो वी एक्सेस आइटम यूजिंग द इंडेक्सिंग ओनली। इफ यू वांट टू फाइंड द टपल लेंथ, तो टपल लेंथ के लिए हम यूज करते हैं लेन फंक्शन। एंड टपल का आपका जो भी नाम है, जैसे नम टपल, सो दिस विल रिटर्न द टोटल लेंथ ऑफ द आइटम्स इन इट, कि भाई कितने आइटम्स इस टपल के अंदर कंटेन्ड है। ठीक है, यू कैन आइट्रेट थ्रू अ टपल जस्ट लाइक अ लिस्ट, और आइट्रेशन भी वही है फॉर एक्स इन टपल, जैसे लिस्ट में आइट्रेशन कर रहे थे वैसे ही, और फिर प्रिंट या जो भी काम कराना है, सो यू विल बी एबल टू आइट्रेट, मतलब उसको एक एक करके एक्सेस करा पाओगे आप। ठीक है, टपल असाइनमेंट को एक्सेस करना, उसको अगर आपको टपल को काइंड ऑफ सबस्ट्रिंग जैसा बनाना है, सो यू कैन इवन डू दैट। वही स्लाइस ऑपरेशंस आप लगा सकते हो, जो भी आपका टपल नेम, एंड देन यू आर डूइंग अ स्लाइस ऑपरेशन, सॉरी, सो 1 to 4, 1 इंडेक्स से 4 तक, सो इट विल गिव यू 2, 3, 4। ठीक है, सो ऐसे करके स्लाइस ऑपरेशंस भी हम उसी तरह लगाते हैं। एक चीज होती है पैकिंग एंड अनपैकिंग। So in packing, we place value into a new tuple, while in unpacking, we extract those values back into a variable. ठीक है, so जैसे पैकिंग मतलब सिंपल है, जैसे आपने ये जो टपल बनाया है ना, ये हमारा हो जाता है पैकिंग। ठीक, दिस इज पैकिंग, दैट यू आर, सॉरी, कमेंट, you're packing it, you are putting the values into one tuple that you're creating. Unpacking का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मेरे पास कोई टपल है, ABC, और मैं इसको अनपैक करा रही हूँ, हम इन वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये काम कराना है, देन वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट। सो फॉर एग्जांपल, ये मेरा एक टपल हो गया, y इक्वल्स टू ABC। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स वील गिव, जैसे ABC इक्वल्स टू y। तो वो जो एक टपल है मेरा, जो मैंने पैक कर रखा है ABC को y में, अब हम उसको यहाँ पे अनपैक करा रहे हैं अलग अलग वेरिएबल्स में। तो ये ABC जो है वो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। अब जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो वो वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए।
सो देखिए वो उन वैल्यूज को एक्सेस कर पा रही है। आप कुछ और लगा दीजिए A1 जस्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर कि ये ABC वेरिएबल्स में वो वैल्यूज जो हैं आइटम्स निकल के आ रहे हैं और सेव हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज पैकिंग एंड अनपैकिंग. We can compare tuples. So comparison operator in Python can work with tuples very well. और ये जो comparison है वो start होता है with the first element of each tuple. So they do not compare to you know this equal to, less than और greater than. और फिर वो next उस पे element पे चले जाते हैं. जैसे अगर पहला नहीं match हुआ तो वो second पे चला जाएगा. So you can actually compare tuples. For example, I have a tuple T1 equals to 1, 2, 3. T2 equals to 2, 4, 6, 2, 4, 5. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो मेरे पास ये दो टपल्स हैं, तो मैं इन पे ना ये चीजें जो ऑपरेशंस आपको दिख रहे हैं ना, वी कैन अप्लाई दोज ऑपरेशंस वेरी वेल. ठीक है, जो जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं वी कैन अप्लाई दैट. सपोज मैंने T1 प्लस T2 किया तो आपको दिख जाएगा 1, 2, 3, 2, 4, 5 दोनों ऐड हो गए. जैसे हमने लिस्ट को ऐड कराया था, याद होगा, या कंकैटिनेट कराया था. अगर आपको कंपैरिजन करना है तो इफ T1 greater than T2, print T1 is bigger, else print T2 is bigger. We usually compare this. 1 minute. Why it's not reported here? Let me check. So as it is saying that T2 is bigger, right? So it's returning with T2 is bigger. Suppose I give 0, 1, 2. This should return as T1 is bigger. ठीक है, सो ये जो कंपैरिजन है दैट स्टार्ट टू द फर्स्ट एलिमेंट. इस केस में जो पहला एलिमेंट है वो 1 है और 0, तो वो भाई बिगर हो गया, आउटपुट A इज बिगर. फिर नेक्स्ट कंपेयर होगा 2 और 1, और फिर नेक्स्ट कंपेयर होगा 3 एंड 2. तो जिसमें सबसे ज्यादा बिगर एलिमेंट्स रहेंगे वो वाला आपका एज एन आउटपुट आपको पता चल जाएगा. तो यू कैन एक्चुअली कंपेयर द टपल्स. ठीक है, वी कैन यूज टपल्स एज कीज इन द डिक्शनरीज एज वेल. सिंस ये जो हमारे टपल्स होते हैं वो हैशेबल हैं, एंड लिस्ट जो है वो हैशेबल नहीं होती है. हैशेबल मींस एक काइंड ऑफ एक हैश फॉर्मेट रहता है, राइट, इफ यू नो. सो हम उस तरीके के लिए अगर हमारे ये हैशेबल रहता है तो हम इन टपल्स को कीज की तरह यूज करा सकते हैं अगर हमें की स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं. ठीक है, जो हमें डिक्शनरीज में यूज करने होते हैं. तो डिक्शनरी आपको एज इन नॉर्मल डिक्शनरी अगर पता है तो हमारे पास जैसे एक वर्ड होता है और उसकी मीनिंग, तो उसी तरीके से ना हम यहाँ पे डिक्शनरीज डिफाइन कर सकते हैं जिसमें हमारे पास कीज होती है और उसकी वैल्यूज होती हैं. ठीक है, तो हम उन कीज में ये टपल्स यूज करा सकते हैं एज कीज. ठीक है, ऑफ द डिक्शनरी दैट वी कैन इजिली यूज. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. अभी वैसे आपने डिक्शनरी देखा नहीं है, लेकिन आई जस्ट क्रिएट अ सिंपल डिक्शनरी. A इक्वल्स टू ठीक है, मान लीजिए ये एक सिंपल डिक्शनरी है. सो डिक्शनरी कैन रिटर्न द लिस्ट ऑफ टपल्स बाय कॉलिंग आइटम्स वेयर ईच टपल इज अ की वैल्यू पेयर. ठीक है, वेयर ईच टपल इज अ की वैल्यू पेयर. सो सपोज B इक्वल्स टू लिस्ट में इसको बदलो A of items. ठीक है, and then we are going to print B. सब आप इसको देख रहे हो, ये कैसे रिटर्न हो रही है एज टपल वैल्यूज.
दिख रहा है एज टपल वैल्यूज, जहां पे जो पहला वाला है दैट इज योर की और सेकंड जो है वैल्यू, तो ये एक लिस्ट में आपको एज अ टपल रिटर्न हो रही है, ठीक है। और हर जो टपल है वो मेरा की वैल्यू पेयर की तरह रिटर्न होता है। सी, ये टपल है, एक लिस्ट के अंदर आप क्या कर रहे हो, लिस्ट ऑफ टपल्स बन गया आपका, एक लिस्ट में आपके पास टपल्स हैं, ठीक। सो ऐसे आप साथ में काम कर सकते हो। अगर आपको डिलीट कराना होता है टपल तो उसके लिए हम डिलीट कीवर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे डिलीट T3, ठीक है। डिलीट कर दीजिए, प्रिंट करके देखिए तो एरर आएगी क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर, ठीक। एरर क्योंकि वो डिलीट हो गया। ऑल राइट, सो यू आर एबल टू डिलीट। You can change the tuple items. Can you change the tuple items? No. Tuples, they are immutable. You cannot change the tuple items. अगर हम ये करने की कोशिश करते हैं तो हमें एरर मिलती है। हालांकि देयर इज अ वर्क अराउंड। एंड व्हाट इज अ वर्क अराउंड विद वर्किंग, कि अगर मुझे कभी चेंज कराना है, सपोज मेरे पास टपल है और मैं कहती हूँ इसमें जो 4 है उसको मुझे 5 बनाना है। If I go ahead doing with T1 3 equals to 5, ये मुझे देगा एरर, ठीक है। देख लो, चेक कर लो, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू चेंज। इसने मुझे दिया एरर, ठीक। अब क्या कर सकते हैं हम, किस तरीके से चेंज करा सकते हैं, हम यहाँ पे लिस्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज अ लिस्ट फंक्शन। यहाँ पे जो आपका आइट्रेबल आप लिस्ट में बदल रहे हो वो है टपल, ठीक। अब जब हमारे पास ये हो गया तो L1 में मतलब थर्ड वाली पोजीशन में आपने 5 करा के अब तुम इसको देखोगे वापस से टपल में चेंज करके, एंड देन वी प्रिंट द टपल, ठीक है। हो गया 1 2 3 5। सो ये क्या है, वर्क अराउंड। कभी आपको टपल्स में चेंज करना है, कोई चेंज लाना है, मॉडिफाई कराना है, डिलीट करना है, इंसर्ट कराना है, तो आप टपल को पहले लिस्ट में बदलते हैं। ये जनरल क्वेश्चंस है विच गेट आस्क्ड। तो पहले आप टपल को लिस्ट में बदलोगे, लिस्ट में चेंज करा के वापस से टपल में डाल के प्रिंट करा दोगे, ठीक है। कभी आपको ऐसा चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर आइटम एक टपल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, देन हाउ डू वी डू दैट। अगर मैं कहूं कि इफ आई नीड टू चेक वेदर 3 इज इन टपल T1 और नॉट, हाउ विल आई चेक इट। बताइए, हाउ विल यू चेक वेदर अ सर्टेन एलिमेंट is present in a tuple or not। कैसे चेक करेंगे आप बताइए। सो दैट फॉर दैट वी यूज इन ऑपरेटर। मैंने कल भी बताया था, अगर कोई लिस्ट में आप चेक करना चाहते हैं कुछ तो हम इन और नॉट इन यूज करते हैं, राइट।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मुझे चेक करना है कि वेदर 3 इज देयर इन द टपल, विच टपल आई एम टॉकिंग अबाउट, T1। सो उसके लिए मैंने इन यूज करा और यहाँ पे मुझे ट्रू और फॉल्स में आंसर मिलेगा इसका। तो हाँ भाई 3 है, ठीक है। आप नॉट इन भी यूज कर सकते हो, नॉट इन उसी का उल्टा है, तो हमें मिलेगा फॉल्स क्योंकि ये तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। सो हम उसके लिए इन यूज करते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं कि आपने टपल बनाना शुरू करो और आपके पास टपल में सिर्फ एक ही आइटम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका टपल है और उसमें आपके पास सिर्फ एक ही आइटम है, सपोज 7। तो आप उसको ऐसे कभी नहीं लिखेंगे, नॉट गोइंग टू राइट इट लाइक दिस। हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट? अगर आपके टपल में एक ही आइटम है इन द बिगिनिंग ऑफ इट सपोज, और उसको आपको एज अ टपल रिप्रेजेंट कराना है, ठीक, तो आप उसको लिखेंगे, सिर्फ ऐसे भी नहीं छोड़ सकते हैं, आप कॉमा लगा के छोड़ेंगे। So now this will indicate that it is a tuple with only one item, और एक आइटम क्या है उसमें 7, ठीक है। So कभी भी आप बिना कॉमा के एक आइटम को नहीं छोड़ोगे वहां पे, नहीं तो वो नॉर्मल डेटा टाइप की तरह ही ट्रीट होगा, ठीक। ठीक, 7। Understood this? Any confusion? You can also create a tuple using tuple construct. सपोज आपको ना टपल बनाना है, तो टपल बनाने के सिर्फ एक यही तरीका नहीं है, जैसे जो हम ये यूज कर रहे हैं ना, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर होता है, तो आप एक कंस्ट्रक्टर से भी अपना टपल क्रिएट कर सकते हो। सपोज टपल सी इक्वल्स टू टपल, ठीक है। अब इसके अंदर आप अपनी वैल्यूज लगा सकते हैं। अब जो आप वैल्यूज देंगे ना, आप ऐसा नहीं है कि 1 2 3 ऐसे करके लिख दोगे, आप एक टपल की फॉर्मेट में ही लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, जो भी वैल्यूज आपको इसमें लगाने की है। ऑल राइट, तो दो तरीके हो गए, एक हो गया नॉर्मल जो हमारा लिटरल तरीका होता है, और एक हो गया हमारा विद द हेल्प ऑफ अ कंस्ट्रक्टर दैट यू क्रिएट अ टपल। तो अभी भी जो आपका टपल बन के आएगा इट इज अ बेसिक नॉर्मल टपल की तरह ही आएगा, ऐसा कुछ अलग नहीं आएगा, ठीक है। अलग अलग तरीके के टपल्स होते हैं, जैसे आपने कहा कि भाई एम्प्टी टपल है, एम्प्टी टपल माने खाली, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। सपोज ई टपल, अगर आपको कभी एम्प्टी टपल बनाना है तो हम ऐसे बनाते हैं। एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाते थे? एम्प्टी लिस्ट अगर बनानी है तो एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स खाली, एम्प्टी टपल बनाने के लिए राउंड ब्रैकेट्स खाली, कुछ भी नहीं लिखना उसमें, ठीक है। दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग एन एम्प्टी टपल। देखो क्लास टपल आ गया, मतलब सिंपल खाली है, देयर इज नथिंग इनसाइड इट। टाइप, अगर आपको टाइप चेक करना है, ठीक। डिफरेंट तरीके के डेटा टाइप्स के साथ बना सकते हो, स्ट्रिंग के साथ, फ्लोट के साथ। कभी आपको अगर मिक्स टपल बनाना है तो आप मिक्स भी बना सकते हो, ठीक है। ऐसे करा के दिस इज अबाउट टपल्स। एक्सेसिंग ऑल्सो आई टोल्ड यू अबाउट कि भाई टपल्स की कैसे एक्सेस कराते हैं उन्हें, राइट। कोई कंफ्यूजन है इसमें? टपल्स को स्लाइस कराना है, इफ यू नीड टू स्लाइस द टपल्स दैट मीन्स आपको सब एलिमेंट्स कराने हैं, so that is also just a simple slice operation. All right, like x equals to and then a b c d. All right, and then let's print. So अब जैसे print, ठीक है। So this is how you slice it. अब ये सेकेंड इंडेक्स से लेके फोर्थ, फोर्थ क्या है? नॉट इंक्लूसिव, तो आंसर में क्या आ जाएगा आपका? सी एंड डी ओनली,
यहाँ तक नहीं पहुंचेगा. दैट इज द थिंग. जो लास्ट इंडेक्स होता है ना, दैट इज नॉट इंक्लूडेड. ओके. There are different built-in functions of tuples as well, जैसे all, any, enumerate, maximum, sorted, length tuple, etc. So we'll talk about those as well. Any confusion so far anywhere? किसी को अभी तक कोई कंफ्यूजन है कहीं पे? किसी को कहीं पे कोई कंफ्यूजन? All right. ठीक है, so let's move on to the next topic for discussion then. Now I'll be talking about sets. Okay. Now, how do we create a set? So set is basically a collection of unique data, meaning that the elements within a set, they cannot be duplicated.
मतलब ऐसा नहीं है 1 1 2 2 3 3 ऐसे करके यू कैन पुट डेटा इनटू इट. इट हैज टू बी यूनिक एलिमेंट्स. अगर आप डुप्लीकेट भी डालते हो दे इट्स गोइंग टू रिमूव दी or not consider the repeated ones in it. All right. So set बनाने का तरीका होता है with the help of curly brackets. Suppose I do with student ID like this. ठीक है. So this is a set with curly brackets. अब आपको ये पता है भाई आपके रोल नंबर्स आपकी आईडीज ये यूनिक ही तो होती हैं, है ना भाई. कोई दूसरा आपके स्कूल में आपकी क्लास में सेम आईडी से तो नहीं घूम रहा होगा. सो दैट इज अ यूनिक. अगर आपको कोई यूनिकनेस वाले काम करने हैं इन योर प्रोजेक्ट इन योर वट एवर यू आर हैंडलिंग द प्रोग्राम, there you will be using or creating a set by placing all the elements inside the curly brackets and they are separated by commas. Now your set can have any number of items and they may be the of different data types. They may be of different data types. Okay. Like integer, float, tuple, string, कुछ भी. But the set cannot have a mutable element. Set के अंदर आप mutable चीज नहीं रखोगे. जैसे list हो गया, ठीक है, डिक्शनरी हो गए, ठीक, सेट्स हो गए. मतलब वो चीज आप एक उसके अंदर नहीं कंटेन कराओगे. मीन्स टपल्स रख सकते हो उसके अंदर, आप लिस्ट नहीं रख सकते, आप डिक्शनरी नहीं रख सकते. ठीक है. सो दैट यू नीड टू रिमेम्बर. ऑलराइट. अब जैसे हमारा ये एक बन गया. अब इसको अगर हमें आगे प्रिंट कराना है तो प्रिंट सिंपल जैसे हम प्रिंट कराते हैं. अब अगर हमें क्रिएट कराना है सेट ऑफ स्ट्रिंग टाइप्स. ठीक. अगर हम सेट ऑफ स्ट्रिंग टाइप्स बना रहे हैं सो देखिए एक ये तरीका है विच इज कमिंग अप विच इज योर कंस्ट्रक्टर्स कॉल से. लेकिन अगर हम बिना कंस्ट्रक्टर कॉल के करा रहे हैं एंड सो ऑन. सो अब ये कॉमा सेपरेटेड वी कैन पुट. अब जैसे मैंने यहाँ पे ए को रिपीट कर दिया है. एज यू कैन सी आई हैव रिपीटेड ए एंड इफ आई प्रिंट दिस आउट देन व्हाट शुड बी द आंसर. लेट्स सी. आप देखोगे जब मैंने प्रिंट करा तो उसने सिर्फ 3 ही प्रोसेस कराए ने या 4 एलिमेंट्स दिए थे क्योंकि ए जो है वो डुप्लीकेटेड है तो वो दोबारा से उसको नहीं लेगा. इट्स ऑलरेडी देयर. ठीक है. सो ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स पे नहीं काम करता है. आप डाल दो उसमें भले ही आप इंक्लूड करा दो बट वो इंक्लूड नहीं करेगा, वो हटा देगा. ठीक. यू कैन हैव अनदर विच इज योर सेट ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप्स. ठीक है. अगर मुझे मिक्स्ड डेटा टाइप्स रखने हैं, ठीक, अगर मुझे मिक्स्ड रखने हैं सो आई कैन हैव डिफरेंट काइंड्स इंक्लूडेड. अब जैसे आप देख रहे हो एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है और एक टपल है. आई विल नॉट बी एबल टू इंक्लूड अ लिस्ट. लिस्ट हम इनमें नहीं प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है. एक और चीज आपको ध्यान रखनी है व्हेन यू आर वर्किंग विद सेट्स इज दैट जो इसका ऑर्डर होता है ना वो अलग होता है. ठीक है. इट हैज नो सेट ऑर्डर. जैसे अभी तक हम इंडेक्सिंग पे काम कर रहे थे, टपल में देखा हमने, लिस्ट में देखा, उसमें एक ऑर्डर था. जिस तरीके से हम प्रोवाइड करें उसी तरीके से इंडेक्सेस लग जाते थे. लेकिन इसमें इंडेक्सिंग का या ऑर्डर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है. ठीक है. इट इज नॉट ऑर्डर्ड. ऑलराइट. How will you create an empty set? अगर मुझे एक empty set बनाना होता है तो हम बनाते हैं empty set. अब हम आगे यहाँ क्या लिखें that it becomes an empty set. तो उसके लिए हम उसका set constructor यूज करते हैं. अगर हम ये ना करें ना और हम अगर empty set बना रहे हैं with a curly bracket, ठीक है, with a curly bracket,
तो ये बेसिकली एक डिक्शनरी बन जाती है, एम्प्टी डिक्शनरी। दिस इज नॉट ए सेट। अगर हम सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे तो वो सेट नहीं बनता है, वो डिक्शनरी बन जाती है। ठीक है, देखो क्लास डिक्शनरी आ गई टाइप में। ऊपर वाला ये जो है वो हमारा सेट बनेगा एम्प्टी। ठीक, सो एम्प्टी सेट बनाना है तो आपको सेट कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ता है उसके लिए। सो सेट्स जो है वो म्यूटेबल है, हाउएवर इनका कोई ऑर्डर नहीं होता है, तो इंडेक्सिंग नहीं लगाते हम इसमें। इसलिए हम यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इंडेक्सिंग से या स्लाइसिंग के मेथड से नहीं यूज कर पाते हैं। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे मेथड्स होते हैं। ठीक है, टू वर्क विद इट हमारे पास यहाँ डिफरेंट मेथड्स होंगे। ठीक, जैसे ऐड मेथड हो गया, अगर मुझे कुछ ऐड कराना है इसमें टू द सेट तो हम उसके लिए ऐड मेथड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एम्प्टी सेट बनाया, अब आप इस सेट में कुछ डेटा ऐड कराना चाहते हो। ऑलराइट, तो डेटा ऐड कराने के लिए हम यहाँ पे जैसे सेट इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, डॉट ऐड। अब जो भी इसमें मतलब वैल्यू आप रखना चाहो, वी कैन पुट दैट वैल्यू। ऐसी डॉट ऐड मेथड को यूज करके we'll be adding datas into it। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको कोई भी सेट है उसमें डेटा ऐड कराना है, देखिए 1 2 3 आ गया, तो हम उसमें इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग नहीं यूज करते, हम ऐड मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें अपडेट कराना है विद अदर कलेक्शन टाइप से, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अपडेट। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक सेट में आपको और जो आगे उसमें डेटा ऐड करना है वो एक लिस्ट से उठा के करना है, जैसे यही हो गया। सपोज ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट को सेट में ऐड कराना है। ठीक है, कन्वर्ट भी करा सकते हो आप सेट में, कन्वर्ट करा के दोनों को ऐड करा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको वैसे नहीं करना है तो आप अपडेट कराओगे, अपडेट मेथड यूज करके। अपडेट, ठीक, एंड जो भी आपकी आइटरेबल है, कोई भी आइटरेबल, चाहे वो सेट हो, चाहे कोई टबल हो या लिस्ट हो, अलग से ऐड कराना चाहते हो, हम अपडेट यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए हो गया ऐड अपडेट मेथड से। ऑलराइट, अगर आपको कोई एलिमेंट रिमूव कराना है सेट से तो आप यूज करेंगे डिस्कार्ड मेथड टू रिमूव एनी स्पेसिफाइड एलिमेंट। तो यहाँ पे जब हम डिस्कार्ड मेथड यूज करते हैं तो डिस्कार्ड मेथड के लिए यू विल हैव टू पास, वो मतलब एलिमेंट बताना पड़ेगा कि भाई इस पर्टिकुलर मेथड से आपको ये हटाना है या रिमूव कराना है। ठीक है, और भी सारे मेथड्स हैं। तो अब नीचे नोटिस करोगे तो 3 आपका रिमूव हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके यू कैन यूज डिस्कार्ड मेथड। और बिल्ट इन फंक्शंस है जैसे ऑल, तो ऑल जो होता है मेथड वो होता है हम एक सेट पे लगाते हैं टू सी वेदर द एलिमेंट्स आर देयर और नॉट, और अगर नहीं होता है तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है,
फिर जैसे लेंथ हो गया, लेंथ फाइंड करने के लिए जो अगर लार्जेस्ट आइटम देखना है तो मैक्स है, मिनिमम देखना है मिन है, ठीक है। ऐसे करके यू हैव द मेथड्स, most of the methods. Now, if you need to iterate over a set, you will be using for loop. ठीक, for x in EMP set, ये सिंपल जैसे हम for loop लगा रहे थे उसी तरीके से for loop इस पे भी लगा सकते हो, सेम तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास होते हैं सेट ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशंस आपने ना मैथमेटिक्स में भी पढ़ रखे होंगे। कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द सेट ऑपरेशंस? What are the different set operations that you know about? पढ़े होंगे आपने। कौन कौन से सेट ऑपरेशंस आप जानते हैं? इंटरसेक्शन, यूनियन, है ना, और डिफरेंस होता है, राइट। डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, सेट्स बराबर हैं कि नहीं, इक्वल, तो वो सारी चीजें आप यहाँ अपने सेट्स पे अप्लाई करा सकते हो। देयर आर मेथड्स फॉर दैट, देयर आर operations for that. I'm just letting you know what are the methods. जैसे यूनियन यूनियन ही है। जैसे आपके पास एक सेट है S1 डॉट यूनियन S2, ठीक है। ऐसे ही S1 डॉट इंटरसेक्शन S2। अभी आप बताओगे व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑल ऑफ देम और आंसर मुझे दोगे। इंटरसेक्शन S2, ठीक। फिर हमारे आपने पढ़ा होगा डिफरेंस, डिफरेंस पढ़ा है S1 डॉट डिफरेंस S2, S1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस S2, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस। और फिर अगर आपको कभी चेक कराना है कि मेरे दो सेट्स इक्वल हैं कि नहीं, तो उसके लिए हम सिंपल यूज करते हैं S1 इक्वल्स टू S2, ठीक। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट मेथड सिंपल ऐसे ही लगेंगे। मैं आपको करके नहीं दे रही हूं, मैं आपको दे रही हूं अभी सिर्फ क्वेश्चन। दो सेट्स है हमारे पास, सेट 1 एंड सेट 2, एंड यू हैव टू अप्लाई इट इन द सेम मैनर। जैसे आपको ये दिख रहा है S1 डॉट यूनियन, S2 डॉट S1 डॉट इंटरसेक्शन, S1 डॉट डिफरेंस, ये सब आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे ये ठीक है। ये सारे ऑपरेशंस आई एम गिविंग इन द चैट टू यू। आई एम गिविंग यू 5 minutes right now. You are going to create, I've shown it over here, I'm not showing you the answer, I'm going to ask the answer from you because you have done mathematics. तो सेट्स तो तुम्हें पता है कि क्या होते हैं। सेट्स में ये तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, आपने वेन डायग्राम्स बनाए होंगे, यू ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ इट। ये मुझे करके दिखाइए आप। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू डू, आपको एक चॉइस प्रोग्राम बनाना है। चॉइस प्रोग्राम समझते हैं?
I think I have done choice program with you guys ना. चॉइस बना के दिखाया था मैंने कि अगर आप 1 चूज कर रहे हैं तो कौन सा पार्ट चलना चाहिए, 2 चूज कर रहे हैं तो क्या चलना चाहिए. अब आपको एक चॉइस प्रोग्राम बनाना है फॉर दीज सेट्स. ठीक है, आई एम गिविंग यू 10 minutes. ऑल राइट, योर टास्क इज इसको हम लोग कहते हैं मेन्यू चॉइस प्रोग्राम फॉर सेट ऑपरेशंस. ठीक है, सो यू आर टास्क टू क्रिएट अ मेन्यू चॉइस प्रोग्राम फॉर सेट ऑपरेशन. ऑपरेशंस अप्लाई बस ऐसे ही करते हैं. आपको क्या लगाना है, स्टेटमेंट्स लगाने हैं बेसिकली कि आप एक मेन्यू ड्रिवन चॉइस प्रोग्राम बना पाओ. एम आई क्लियर ऑन दैट? अभी भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि करना क्या है, प्लीज आस्क अगेन. आई एम गिविंग यू 10 minutes टू डू दिस एक्टिविटी. ये चीजें अप्लाई करनी है और एक वो इक्वल टू वाला और देखना है. ठीक है, एंड आपको एक मेन्यू ड्रिवन चॉइस प्रोग्राम बनाना है. ऑल राइट,
Doing, everyone? Any doubt in the question?
Done, everyone? Can you start pasting your answers? Are you is any one of you facing any difficulty in doing this question? Okay, I'll walk you through it. I have it here. I just created, if you remember from the last time when we also did the menu driven program at that time, this is again the same kind that you'll be doing. We'll be using a while loop as well as if else if ladder over here. Okay, okay. Now here the first thing is first that you need to have a menu, right? कि भाई मेन्यू में करना क्या है कि भाई यूनियन कराना है, इंटरसेक्शन कराना है, डिफरेंस कराना है, एग्जिट कराना है, इक्वल कराना है. तो उस तरीके से आपने एक फंक्शन बना लिया मेन्यूज का अपने. फिर उसके बाद हम दो सेट्स या कंसिडर करके चल रहे हैं, सेट वन सेट टू. तो पहले हम एम्प्टी सेट बना लेंगे, ठीक है. एम्प्टी सेट. फिर जब तक हमें ये काम करना है, जब तक हमारा लूप जो है ट्रू ट्रू ना हो. कब फॉल्स होगा? जब हम चॉइस देंगे 4, क्योंकि वहीं पे हम क्या करा रहे हैं, एग्जिट करा रहे हैं. ऑलराइट, तो वहीं पे हमने ब्रेक दे रखा है. अब वाइल लूप समझ में आ गया. जब वाइल खुलता है तो जब हमारा वाइल लूप रन होना शुरू होगा तो सबसे पहले हमें मेन्यू डिस्प्ले कराना है जो हमने ये अपना फंक्शन बना रखा है. उसके बाद हम चॉइस मांगेंगे कि भाई गिव योर चॉइस इस मेन्यू में से. तो वो 1 2 3 4 जो एक चॉइस लेगा. फिर इफ एल्स इफ लगा के यहाँ पे मैंने जो एक काम कर रखा है वो ये है कि मैंने हर चॉइस के साथ क्यों ना सेट वन सेट टू ले रखा है. आप ऐसे ना करके एक ही बार इसको यहाँ पे ले सकते हो. ठीक है, एंटर योर चॉइस, फिर सेट वन. पहले सेट वन ले लो, फिर सेट टू ले लो, फिर चॉइस ले लो. ठीक, बेस्ड ऑन दैट यू कैन प्रोसीड ऑन द सेम. ठीक. सो ये बार बार ना करके मैं इसको यहाँ भी शिफ्ट कर सकती हूँ ऊपर. आप भी कर सकते हो एक ही बार, और फिर चॉइसेस रन करा सकते हो 1 2 3. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक दिस. तो भाई अब जैसे इफ चॉइस वन है तो सेट वन सेट टू हमने ले लिया. यूनियन रिजल्ट. ये मैंने यहाँ जो यूज करा है ये क्या है, ऑपरेटर है. ठीक है, ये यूनियन का ऑपरेटर है, ये इंटरसेक्शन का ऑपरेटर है, ये डिफरेंस का ऑपरेटर है. ठीक है. सो ये ऑपरेटर्स हैं. आप ऑपरेटर ना यूज करके मेथड्स भी यूज कर सकते हो. ठीक है, तो दोनों ही काम करते हैं. Understood this? Any confusion? Let me copy this and provide it to you in the chat. Okay. So ये हमारे हो गया sets.
Please go through this solution that I've shared in the chat and let me know if you find it, any difficulty in understanding that. If not, then I'll be moving to the next thing, which is dictionary. All right. Now Python dictionary जो है वो key value pairs रहते हैं उसमें, ठीक है? So we make it by using curly brackets and providing key value pairs in it. ठीक, अब इसके अंदर जो हम की वैल्यू पेयर्स प्रोवाइड करेंगे जैसे कंट्री और कैपिटल्स, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया एंड दिल्ली, तो कैसे लिखोगे आप लिखोगे इंडिया और न्यू दिल्ली, जैसे ये लिख के आ रहा है, ऑलराइट। तो इस तरीके से अब हम इसके अंदर क्या प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे ये हर जो एलिमेंट हो जाता है डिक्शनरी का वो एक की वैल्यू पेयर है, या आइटम कह लो, इसे की वैल्यू पेयर की तरह रहता है। इसमें की है जैसे इंडिया, वैल्यू है न्यू दिल्ली, ऑलराइट। Print karana is again very simple. You just go ahead with print and the name of the dictionary that you have created. ठीक, तो सिंपल वैसे ही बाकी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सो ये जो डिक्शनरी कीज होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं। अब ये आपके टपल, स्ट्रिंग, इंटीजर कुछ भी हो सकता है। वी कैन नॉट यूज म्यूटेबल ऑब्जेक्ट जैसे लिस्ट है एज कीज। You can create a dictionary using inbuilt function which is the dict, okay, as well. डिक्शनरीज जो है वो इम्यूटेबल होनी चाहिए। सो immutable objects can't be changed, once you create it, ठीक। सो जैसे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट हो गया आपका इंटीजर है, टपल है, स्ट्रिंग है, ये सब क्या है, इम्यूटेबल है, ठीक। आप इंटीजर्स को एज अ की बना सकते हो, ऑफ द डिक्शनरी, जैसे ये, ठीक है। यहाँ पे ये 1 2 3 क्या है हमारे, सिंपल इंटीजर्स हैं, राइट। और ये इनक्लोज होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक। अगर मैं कोई लिस्ट एज अ की प्रोवाइड करूंगी, सो देन दैट इज एन एरर, सो दैट इज व्हाट, एन एरर। तो आप एक म्यूटेबल को यहाँ नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। दिस इज एन एरर, यू सी यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। दिस मस्ट बी हैशेबल, एंड लिस्ट जो है वो हैशेबल नहीं है। टपल इज हैशेबल, ऑलराइट, टपल इज हैशेबल, यू कैन यूज अ टपल if you'd like, ठीक। तो ये ऐसे काम नहीं करेगा, लेकिन आप जो वैल्यूज है उनको एज अ लिस्ट प्रोवाइड करा सकते हो। सो आप वैल्यूज में आप लिस्ट दे सकते हो, कीज में आप लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। दिस इज ओके दैट यू सी, दिस इज ओके, क्योंकि यहाँ वैल्यूज जो है इन अ लिस्ट इज प्रोवाइडेड, ऑलराइट। कपल को आप एज अ की यूज कर सकते हैं, कपल को आप एज अ की यूज कर सकते हैं। एंड लेट्स प्रिंट दिस आउट, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3, तो ये हम एज अ टपल इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट नहीं जाएगी वहां पे, ठीक है।
वैल्यूज किसी भी तरीके के हो सकते हैं, कीज आपके म्यूटेबल नहीं होने चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वन मोर थिंग टू रिमेम्बर ओवर हियर इज, कीज जो होंगी वो यूनिक होंगी, कीज जो है वो डुप्लीकेट नहीं होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 कॉमा कोलन मॉस्को, तो यहाँ पे देखिए ये लाइन आने लगी कि डिक्शनरी की लिटरल इज रिपीटेड, तो ये जो है कि जो की है आपकी वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। हाउएवर वैल्यू रिपीट हो सकती है, वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, मतलब वैल्यू रिपीट हो रही है कोई बात नहीं, की रिपीट नहीं होनी चाहिए, की डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, हमेशा यूनिक होनी चाहिए। अंडरस्टूड? एनी कंफ्यूजन? Any confusion, guys? No. All right. Now suppose I have the same country capitals, okay, and I want to access the value. मैं यहाँ पे इसकी values access करा सकती हूँ with the help of the keys. Square brackets में keys लगा के value आप access कर सकते हैं, ठीक है, simple. आप get method भी use कर सकते हैं to access the dictionary elements, ठीक है, जो भी उसकी values है, तो आप वहां पे get भी use कर सकते हैं. So print suppose country capital dot get, ठीक, वो भी आपको सेम एग्जांपल सेम ही चीज प्रोवाइड करेगी। ऑलराइट, सो गेट हो गया, ये दोनों ही आप यूज करा सकते हो। अगर आपको रिमूव करना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं डिलीट, ठीक, कोई मान लीजिए पर्टिकुलर आइटम आपको रिमूव कराना है की वैल्यू पेयर, तो उसके लिए आप यूज करोगे डिलीट, ठीक, एंड देन आप जैसे ये यहाँ पे हम पास कर रहे हैं वैसे ही सेम तरीके से आप पास करोगे। फिर इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, एंड दिस वुड बी रिमूव, ठीक है, देखा आपने यहाँ से इंग्लैंड गायब हो गया। आप पॉप भी यूज कर सकते हो टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम अ डिक्शनरी, तो आप पॉप मेथड भी लगा सकते हैं। अगर आपको पूरी ही डिक्शनरी खाली करनी होती है तो हम उसके लिए क्लियर यूज करते हैं, ठीक है, अगर पूरी ही डिक्शनरी खाली करनी है वी यूज क्लियर, ठीक, तो डिक्शनरी खाली हो गई। You can change the dictionary item. You can change the value of values basically. ठीक है, सो हम values change करा सकते हैं। Suppose dot, not dot, sorry, England, इंग्लैंड हमारे पास अभी क्या है, लंदन है ना, तो हम लंदन की जगह चलो कुछ और विल राइट, व्हाट इज देयर इन इंग्लैंड, अरे वी प्ले दैट ना, मैनचेस्टर, ठीक है, सपोज हमने ना मैनचेस्टर लगा दिया, राइट, सो दिस इज हाउ यू बेसिकली चेंज, ठीक है, दिस इज हाउ वील बी एबल टू चेंज। So let's check this out. So see, इंग्लैंड की वैल्यू हो गई मैनचेस्टर। ऑलराइट, अपडेट मेथड भी आप यूज कर सकते हो टू ऐड और चेंज द डिक्शनरी आइटम्स। आइट्रेट कराना है आपको,
So iterations, yes, to understand iterations, it's very important for, let us see in this particular country capitals, print C. ठीक है, तो अब आप इसको आइट्रेट करा रहे हो, तो आपके पास यहाँ पे इसकी नहीं, ना हियर यू विल सी आउटपुट में हमें क्या मिला, हमें मिली कीज, राइट, हमें क्या मिली, कीज। अगर आपको यहीं पे वैल्यूज लेनी होती तो हम क्या करते, फॉर द वैल्यूज, सपोज हमें कैपिटल निकालना है, ठीक है, तो हम ये वाली जो हमारी डिक्शनरी है, हम उसमें उसको पर की आइटरेट करा सकते हैं, and then you will get, sorry, the values as well, ठीक है। लेंथ पता लगाना है, इट्स सिंपल लेंथ, ठीक, फॉर लेंथ इट इज सिंपल लेंथ, in not in is already something that you can use, okay। और क्या क्या हम इसमें यूज कर सकते हैं, what all you know about in dictionaries, कीज हैं, वैल्यूज हैं, आप डिफरेंटली उसको आइटरेट करा सकते हैं। एक हमारे पास आइटम्स मेथड होता है, ठीक है, which will return the list of tuple pairs that you can use। अगर मुझे डिक्शनरी को सॉर्ट कराना है, ऑल राइट, सपोज S equals to country capitals dot keys, तो हम कीज को सॉर्ट करा रहे हैं, लेट्स से, नॉट श्योर वेदर इट इज सॉर्टेड, GCE, नो इट्स नॉट, एंड फिर हम इसे सॉर्ट कराना चाहते हैं, तो S डॉट सॉर्ट मेथड लगा दिया आपने, ठीक है। सो ये क्या करेगा, सॉर्ट मेथड, इट इज गोइंग टू सॉर्ट द कीज इन इट, ऑल राइट। Okay, so let's do sorting. I think this is deprecated, but let's do it from a different
approach. Now you can sort it by key, by value, okay, and different more things that we can use. Not the sort method, but we use a sorted function for that. Okay. So we'll understand the sorted function, which takes an iterable as an argument and returns a sorted, uh, version of that iterable. And sorted function is basically a Python built-in functions that, for example, now this can be used with any, this sorted can be used with any, iterable. For example, name equals to, and we give a list of names over here. Whatever. Okay, so you have a list of names. Now you want to sort these. So we can use sorted method over here to sort these out. And इसी sorted को we are going to use to sort the dictionaries. Now it is important to mention ये जो sorted function है, it doesn't work in place. That means ये एक ही जगह पे नहीं या इसी लिस्ट के अंदर नहीं बनाता है, ये एक नई लिस्ट बना के देगा आपको. ठीक है. सो दैट मीन्स जैसे मैंने यहाँ सॉर्टेड नेम्स कर दिया, मैं एक नई लिस्ट, ये एक नई लिस्ट दे रहा है, तो मुझे नेम में ही नहीं करके दे रहा है. इफ आई गो एड एंड जस्ट प्रिंट नेम ना, सो यू विल नो फाइंड नो चेंजेस इन दिस लिस्ट, कि ये वाली लिस्ट में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि सॉर्टेड जो है इन प्लेस सॉर्टिंग नहीं करता है. ठीक है. देखो इन प्लेस सॉर्टिंग नहीं करता है, वो एक नई लिस्ट बना के देता है. ठीक है. इसमें हम दो चीजें और लगा सकते हैं, सॉरी एक चीज और लगा सकते हैं, वो है रिवर्स. अगर मुझे इसको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कराना है, ठीक, तो मैं यहाँ पे रिवर्स मेंशन कर सकती हूँ, विच इज रिवर्स. ट्रू और फॉल्स होता है. ठीक है. तो रिवर्स हो गया हमारा ट्रू. अगर मैंने पास करा है तो उल्टा ऑर्डर आएगा. ठीक. देखिए स्वाति माला लता ब्रियाशा, सो रिवर्स जाता है इसमें. ये बात समझ में आई? ठीक. तो हम ऐसे ही सॉर्टिंग यूज करा सकते हैं फॉर योर डिक्शनरी सॉर्टिंग. अब जैसे बिफोर वी गेट इन टू सॉर्टिंग अ डिक्शनरी, पहले हम एक्सट्रैक्ट कराएंगे डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डिक्शनरी. ठीक. जैसे कि आपका जो डिक्शनरी है उसमें हमारे पास की वैल्यू पेयर्स रहते हैं, राइट. की वैल्यू पेयर्स रहते हैं, तो हम पहले कीज और वैल्यूज को सेपरेट करा लेंगे कीज और वैल्यूज मेथड यूज करके, और फिर हम उनको सॉर्ट करेंगे. ठीक. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डिक्शनरी है एम्प्लॉइज, मैक्स, जॉनथन, डेविड, एशली, अदर पीपल. मुझे इसमें से ये देखना है कि कीज क्या है, तो आई कैन गो अहेड विद डॉट कीज मेथड. ठीक है. सो एम्प्लॉइज डॉट कीज. ठीक. तो हमारे पास ये डिक्शनरी की कीज निकल आई. मैक्स, जॉनथन, डेविड, एशली आर द कीज. ठीक. अब अगर मुझे इसमें से चाहिए वैल्यूज, सो हम वैल्यूज मेथड यूज करेंगे. तो हमें एक अलग से वैल्यूज मिल गई, ये डिक्शनरी वैल्यूज आ गई. ठीक. यू कैन ऑल्सो एक्सट्रैक्ट की वैल्यू पेयर्स. अगर मुझे की वैल्यू पेयर्स निकालने होते हैं तो उसके लिए हम आइटम्स यूज करते हैं. ठीक है. सो वहां हम यूज करेंगे एम्प्लॉइज डॉट आइटम्स. ठीक है. तो ये हमें पर्टिकुलर
आइटम्स मिलके एक टपल फॉर्म में, एज यू कैन सी, राइट। अब sort karana hai. Now to sort a dictionary by key or values, we first take the items and then we use a key parameter of the sorted function to choose either keys or values, you know, with indexing. Now since an item जो है वो extract होता है as a tuple of a key and a value, जो first element is a key and the second element is the value जो index हो जाता है 0 और 1, ठीक है। So अब इसे अगर हमें sort कराना है by keys, all right, so we'll use sorted. Here we'll go with employees dot items comma key, ठीक है। अब यहाँ हम ना एज अ लैम्डा फंक्शन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, कि हमें इसमें देना क्या है, ठीक, जो हम यहाँ की बेसिस पे करा रहे हैं, ठीक है। ये वाला आई एम नॉट वर्किंग विद, तो जो की है इसमें सॉर्टिंग की, एक डिक्शनरी की, वो आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है, इक्वल्स टू लैम्डा। हमारे पास जो की के बेसिस पे करा रहे हैं उसका इंडेक्स है 0, तो x ऑफ 0 हम की के बेसिस पे सॉर्टिंग करा रहे हैं, ठीक है, सिंपल ये। नाउ लेट्स सी, अच्छा प्रिंट नहीं करा, आई एम सो सॉरी। सो अब आप इसकी जो सॉर्टिंग देख रहे हो, एशले, डेविड, जॉनथन, मैक्स, सॉर्ट हो गया किसके बेसिस पे, कीज के बेसिस पे। तो हमने यहाँ पास किया, जब हम डिक्शनरी सॉर्ट करते हैं तो हमारे पास की बताते हैं हम कि भाई हम किसके बेसिस पे करा रहे हैं, क्योंकि टपल पास कराना है, राइट। तो इंडेक्स रहता है, तो 0 इंडेक्स जो होगा वो की के लिए होगा, और अगर मैं यहाँ पे 1 डाल देती ना, x ऑफ x1, तो मतलब मैं वैल्यू से करा रही हूँ। आगे अगर रिवर्स ट्रू फॉल्स जो भी चाहिए दैट यू कैन पुट, तो बेसिकली रिवर्स ट्रू डाल दिया तो हम उल्टा करा रहे हैं, ठीक है। अब जो आप देखोगे ये वैल्यूज के बेसिस पे, ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अंडरस्टूड दिस। तो ऐसे हम ये ना सॉर्ट कराते हैं डिक्शनरीज को अपने। एनी कंफ्यूजन? कोई चीज जो इसमें ना समझ में आई हो? Do you want this code? Now, अगर सब समझ में आ गया है, so I am sharing an in-class assignment with you. ठीक है, अगर सब समझ में आ गया, so let's do an assignment in the class, है ना? All right. Allow me a minute. कल लिस्ट वाला आप सबने कर लिया था?
See, I'm giving questions to you guys that you need to start solving. Dictionary, I've given iteration. Now, all the questions that I've provided in the chat are to be done in the class right now itself. You have 15 minutes to yourself. You'll be completing these questions and you'll be sending it in the chat. I'm sending the same on your WhatsApp group. You have to complete this. You have 15. All right. Please start completing this. You'll start sending. Anyone who will not complete this, you have no attendance for today. So all of your submissions contribute towards your attendance, as well as obviously there is a tally whether who now, as soon as I gave the assignment, I see a drop of students over here. Around 20 students dropped from the session thinking that the session is over. Session is still not over. Your attendance is being tallied. Okay. So your submission for the assignment for the day as well as your presence in the session is important. So you need to submit as well as your name should be there in the attendance list to be present for the session. So complete this. You have 15 minutes. Please get working. Apart from this, there are 3 more questions for homework assignment that I'm sending in onto your WhatsApp group. If you face any difficulty in solving these questions, you have 15 minutes. You can ping over here. I'm still available and we'll take it up. All right.